Hello everyone. New chapter is chapter 12, power and exponent. What is power and what is exponent? Suppose we can read 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times 2? 1, 2, 3, 4, 5. 2 raised to the power 5. Read it. 2 raised to the power 5. Here is 2 is a base and 5 is a power exponent. Power और एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते. Suppose 5 into 5 into 5. How many types 5? 1, 2, 3. It is a form of 5 raised to the power 3. Read it. 5 raised to the power 3. Here is a 5 is a base and 3 is a power or exponent. Power or exponent. कुछ भी बोल सकते. Yeah. So in general form we can write is a raised to the power v, where a is a base and b is a power. A is a base and b is a power. Clear? So some rules are laws of a exponent and power. वो rule क्या है? पहला rule है when a raised to the power m into a raised to the power n, base are same. Base क्या है यहाँ पे? a है और power क्या है? m और क्या है? n. Base are same, power are different, and operation is multiply. Base are same and operation is multiply, then power should be added. Power क्या होगी? Add होगी. अगर base same है और operation क्या है? Multiply है, तो power क्या हो जाती है? Add. Suppose दिया है 2 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 5. Sorry, plus नहीं, multiply. So आंसर क्या आएगा? अब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखे फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सिर्फ हमें क्या लिखना है? 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5 इजिकल टू क्या हो गया? 2 रेज टू द पावर 8. अगर आपको दिया है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर -5, बेस आर सेम and operation is multiply, so power should be added. 2 raised to the power 3 प्लस बीच में तो प्लस साइन आएगा लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? -5. क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 3 plus minus -5. Which one is greater? 5. Having a with sign minus and both are having a different sign, so here is a subtraction. 2 raised to the power 5 में से 3 subtract किया 2. which sign कौन सा आएगा? माइनस. ठीक. ये हो गया when base are same and operation multiply, then power should be added. Second, ये फर्स्ट आपका हो गया, ये फर्स्ट लॉ है आपका. दिस वन इज फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ, a raised to the power m divided by a raised to the power, base are same, operation is divide, then power should be subtracted. क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी. Suppose 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 5 minus 3 is equal to 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power minus 3. So 2 raised to the power 5 minus बीच में according to rule minus sign और इसको हम as a bracket लिखेंगे. 2 raised to the power 5 minus minus plus क्या आ जाएगा? 2 raised to the power 8. When base are same and operation is division, so power should be subtracted. क्या होगी? Subtract. This is a second law. Third law, when power against power, suppose a raised to the power m again raised to the power n, power against power, so
power should be multiply m into n. Suppose 2 raised to the power 2 again raised to the power 3. 2 raised to power 2 into 3. 2 raised to the power 6. Not add, not subtract. Power should be multiply. Power against power, then power should be multiply. Third law. Third law is when power against power, then power should be multiply. Fourth one. A raised to the power 0 is equal to 1. किसी भी नंबर की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1. 5 raised to the power 0 is equal to 1. 100 raised to the power 0 is equal to 1. कोई भी नंबर बहुत लंबा बड़ा प्लस माइनस 8 कुछ भी लिखा है 300 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 नॉट 0 क्या आएगी 1. किसी भी की पावर 0 होती है वो क्या होता है इसका आंसर 1 होता है. दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. नेक्स्ट फिफ्थ लॉ. अब अभी तक हम पावर सेम बेस सेम पढ़ रहे थे. फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग a raised to the power m into b raised to the power n. Base are different. अभी तक क्या था base are same. Base are different and powers are same. तो क्या होगा जो बेस में जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग होगा. a into b raised to the power m only one time. a into b raised to the power m. a raised to the power m divided by b raised to the power m. तो a upon b raised to the power m. ये क्या हो गया लॉ ऑफ सेकेंड. कोई भी जैसे दिया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3. तो ये क्या इसका आंसर आएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3. नॉट 3 3 जा 6 और 3 3 जा 9. 3 2 3 प्लस 3 6. ये जाएगा 6 रेज टू द पावर 3. ये हो गया. दिस वन इज अ फिफ्थ लॉ. एंड लास्ट लॉ सिक्स्थ लॉ a अपॉन b रेज टू द पावर माइनस n. निगेटिव पावर अगर तो जस्ट रेसिप्रोकल जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देना. b अपॉन a यहाँ पे क्या था a अपॉन b रेज टू द पावर माइनस n. तो उसको क्या कर देना है रेसिप्रोकल और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव. दिस इज अ सिक्स्थ लॉ. क्या करना है a अपॉन b तो b अपॉन a. सपोज दिया है 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 2. क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2. पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव. रेसिप्रोकल देन पावर पॉजिटिव. क्लियर. तो ये सिक्स लॉज हैं आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिनको आपको एक्सरसाइज में यूज करना. क्लियर. फर्स्ट लॉ बेस आर सेम ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई देन पावर एड. base are same operation divide then power should be subtract. Power against power should be multiply. A raised to the power 0 is equal to 1. Base are different power are same then base are multiply. Base are base are different and the operation we divide then base are divide. And this one is power is negative then reciprocal and power is positive converted as a positive. Base is reciprocal and power is positive. Okay? So in सिक्स्थ लॉ को सिक्स लॉज को आपको यूज करना है. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं. और जो लॉ आप यूज करोगे उसको वहीं पे साइड में मेंशन करना है भी किसी भी क्वेश्चन. सपोज दिया है 3 रेज टू द पावर माइनस 2. अभी तो माइनस 2 दिया है पर इसमें तो रेसिप्रोकल नहीं है. जब कोई भी नंबर डिवाइड में कुछ भी नहीं होता तो हम उसको क्या लिख देते हैं 1. ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 रेज टू द पावर माइनस 2. क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहेगा. तो चलिए 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव. यानी 1 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू
3, 1/9। कौन सा लॉ यूज किया हमने यहाँ पे? a/b⁻n इज इक्वल टू b/a⁴n। जो लॉ यूज किया उसको मेंशन कर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जो आपको करना है। सपोज दिया है 1/2⁻⁵। क्या लिखेंगे? माइनस को पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल 2/1 5। अब 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 32 इज आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव पावर नोटेशन में ही लिखना है उसको। मतलब अगर 2 की पावर 5 आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख देना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। या 3/5 आ रहा है तो सिर्फ इसको पॉजिटिव कर देना है, 5/3 पावर नोटेशन एज अ पॉजिटिव पावर नोटेशन में लिखना है, लेकिन पॉजिटिव पावर नोटेशन, निगेटिव में नहीं लिखना। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज सपोज इज गिवन -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8। कौन सा है लॉ यूज होगा? दिस वन इज सेकेंड लॉ। बेस आर सेम, बेस आर बोथ आर -4 and operation is divide, so power should be subtracted। -4 raised to the power 5 माइनस क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? इसको क्या लिख देंगे? -4 raised to the power 5 माइनस 8, -4 raised to the power क्या आ जाएगा? -3। -3 है। अब इसको हमें क्या करना है? पॉजिटिव पावर नोटेशन में करना है। जब कुछ भी बेस नहीं होता है तो हम अपने आप क्या लेते हैं? डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो अपने आप क्या ले लेते हैं? क्या हो जाएगा? 1/-4 रेज टू दी पावर 3। पॉजिटिव पावर नोटेशन में कन्वर्ट। इसको सॉल्व नहीं करना, एज इट इज छोड़ दें। कौन सा लॉ यूज किया था इसमें? a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू am माइनस, ये यूज किया। और यहाँ पे क्या यूज किया? a/b रेज टू दी पावर -n इज इक्वल टू b/a रेज टू दी पावर n। जो आप लॉ यूज करोगे उसको साइड में मेंशन करना है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज मार्क्स आपके कट होते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लें। सपोज दिया है -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4। अब देखिए बेस आर डिफरेंट, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर आर सेम, विच लॉ इज? फिफ्थ लॉ। क्या हो जाएगा? -3 इंटू 5/3 पावर 4 is law is a raised to the power m into b raised to the power m is equal to ab raised to the power। yeah, अब ये कैंसिल। -1 इंटू 5/1 raised to the power 4 -5 raised to the power 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन। 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 in bracket into 3 raised to the power -5। Clear? First solve bracket. So 3 raised to the power -7, base are same,
operation divide. So power should be subtracted. First, according to rule, minus sign and given in with number minus put here into 3 raised to the power minus 5. 3 raised to the power minus 7 minus minus plus 10 into 3 raised to the power minus 5. 3 raised to the power 10 minus 7 is a 3. Both are different sign. 10 is plus and 7 is a minus. So here is a subtraction. 10 minus 7, 3. Which one is greater? 10. Put the sign 3 into 3 raised to the power minus 5. Solve this one. Base are same. Operation is multiply. Power should be added. Plus minus minus 5. So 3 raised to the power minus 2. बट हमें किसमें लिखना है पॉजिटिव पावर नोटेशन सो हियर इज 1/3 रेज टू द पावर ये तो यही आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व है पीडीएफ में आप देख लीजिएगा 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 into 2 raised to the power 2. First solve bracket. 3 raised to the power 0 means 1. Any number having power 0 is equal to 1. So 1 plus 4 raised to the power minus 1. पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल 4/1 into 2 raised to the power 2. Take the LCM. The 4 plus 1 into 2 raised to the power 2. 5/4 into 2 into 2. Cancel. Answer is 5. Yeah. Next question. 2 raised to the power minus 1 into 4 raised to the power minus 1 divided by 2 raised to the power minus 2. So this one is 2 raised to the power minus 1. रेसिप्रोकल करेंगे 1/2. 4 raised to the power minus 1 1/4. पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय इसको भी पॉजिटिव करेंगे तो 1/2 raised to the power. अब 1/2 into 1/4 पावर 1 होती है तो इसका मतलब 1 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1/2 raised to the power 2 या इंटू 1/2 भी लिख सकते तो क्या लिख दिया इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 into 1/4 1/8 divided by 1/4 1/8 divide sign is changed into multiply after division fraction is converted as a reciprocal so the answer is 1/. another method उससे भी आप solve कर सकते next one question number next question है 1/2 raised to the power minus 2 plus 1/3 raised to the power minus 2 plus 1/4 raised to the power minus 2. पावर को क्या करना पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल 2/1 raised to the power 2 3/1 raised to the power 2 4/1 raised to the power 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4/1 3 into 3 9/1 16/1 1 हट जाएगा 4 plus 9 plus 16 सॉल्व 9 plus 20 9 plus 4 13 13 to the 26 plus 29 ये तो यही क्वेश्चंस आपको इस तरह से करने हैं
किसी भी नंबर के भी हमने पावर बोला 0 दिया हो, कोई भी नंबर, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर आपको दिया है 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 पावर 0, डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है 1। अगर सॉल्व करके भी लिखना चाहते हैं तो सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 रेसिप्रोकल करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60, ठीक, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, 60 डिवाइडेड बाई 4 15, 60 डिवाइडेड बाई 5 is 12 पावर 0, 47/60 पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स क्या हुआ, 1। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। पावर अगेंस्ट पावर क्या बताया था, शुड बी मल्टीप्लाई। सपोज दिया है -2/3 रेज टू द पावर -2 अगेन पावर 3 अगेन पावर 2। पावर अगेंस्ट पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। -2/3 -2 इंटू 2, -2/3 -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4। अब और पावर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो 3/-2। बेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बेस के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। रेज टू द पावर क्या हो गया, 4। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है आप। 8 रेज टू द पावर -1 इंटू 5q अपॉन 2 रेज टू द पावर -। जब भी नेगेटिव पावर है फर्स्ट उसको पावर को पॉजिटिव करिए, तो रेसिप्रोकल कर देना है, 8 को इधर कर देंगे और 2 को ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिए। ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5q अपॉन 8। अब सॉल्व कर लिया, 8 को हम क्या, 8 की पावर क्या है 1, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5q अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5q अपॉन 2 की पावर q, 2 रेज टू द पावर 3। अब ये क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3, अपॉन मीन्स क्या होता है, डिवाइड, तो 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। ये बेस सेम है, ऑपरेशन डिवीजन है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 3 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 5 जा 125 इंटू 2 250, आंसर इज 250। ये क्वेश्चंस आप करिए एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। फर्स्ट लॉज आपको याद रखना, लॉज आपको हर जगह, और जो लॉ यूज कर रहे हैं साइड में मेंशन करना जरूरी है। हमने भी नहीं किया तो आप उसको जरूर मेंशन करेंगे पीडीएफ में, हमने एक आध जगह किया ताकि आप उसको यूज करें, और कहीं सब जगह नहीं किया, आप उसको अपने आप यूज करेंगे इसलिए छोड़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन हो उसके बगल में उसका आपको लॉ लिखना है। फर्स्ट लॉ क्या बताया था, a raised to the power m into a raised to the power n, power should be multiplied. First, second, base are same and operation is divide, then power should be subtract. Third, power against power should be multiplied. Any number power having 0 is equal to 1. Base are different but power will be same. Powers are same
So operation, given operation, a into b raised to the power m. A raised to the power m divided by b raised to the power n. So a upon b raised to the power. Sixth, a upon b raised to the power minus n. Power is negative. Then reciprocal the base b upon a. Power should be positive. After reciprocal, power should be positive. 6 laws of exponent. Learn it and do the exercise 12.1 question number 1 to 4. Okay, beta. Good day.